دیکھیں جب بھی کوئی بیٹا اپنے باپ سے ملاقات کرتا ہے اس کو خوشی ہوتی ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اب میرا والد میرے ساتھ ہے اور میری ضرورت پوری کر دی جائے گی. آمین. اسی طریقے سے جب ایک کرسچن جب ایک خدا کا بیٹا یا بیٹی خداوند یسوع مسیح کے گھر پر آتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں میری ضرورت پوری کر دی جائے گی کیونکہ میرا خداوند یہاں پر موجود ہے. بھائی اس کا تھوڑا سا گیٹ کھول دیجیے گا. گاڈ بلیس یو. کیا آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ گیٹ کھول دیں. پریز جیسس. ہاللیلویا. آئیں سب سے پہلے کلام مقدس کی طرف چلیں گے. خروج کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 12ویں آیت کی تلاوت کریں گے. خروج کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 12ویں آیت. کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے. خروج 20 باب اس کی 12ویں آیت. تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو. سب کہیں آمین. سب میرے پیچھے پڑے. تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو. سب کہیں آمین. اسی کے ساتھ مثال کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 24ویں آیت. کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے. مثال کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 24ویں آیت. صادق کا باپ نہایت خوش ہوگا اور دانشمند کا باپ اس سے شادمانی کرے گا. اپنے ماں باپ کو خوش کر. سب میرے پیچھے 25ویں آیت کا پہلا حصہ پڑھیں گے. اپنے ماں باپ کو خوش کر. اپنی والدہ کو شادمان رکھ. سب کہیں آمین. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں کلام مقدس کے لیے. اے رب الافواج خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. تو جو رحیم اور کریم خدا ہے. آسمان تیرا تخت اور زمین تیرے پاؤں تلے بچھو کی. خداوند یسوع تیری حضوری تیری معموری کے لیے میرا دل تیری شکر گزاری سے بھرا ہے. خداوند اب میں اپنے آپ کو تیری حضوری میں تیرے سپرد کرتا ہوں. خداوند میں نہیں بلکہ تو مجھ میں سے ہو کر بولنا. خداوند رب الافواج اپنے لوگوں سے کلام کرنا کیونکہ خداوند ہم تیرے کلام کے بغیر ادھورے ہیں. تیرا کلام ہماری زندگی ہے. تیرا کلام ہماری خوراک ہے. خداوند رب الافواج تیرے کلام سے دور ہو کر ہم کچھ نہیں کر سکتے. اے باپ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں ان تمام بیٹوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے, بہنوں کے لیے, بھائیوں کے لیے جو خداوند تیری حضوری میں آئے ہیں, جنہوں نے تیرے کلام مقدس کی خدمت کو عزیز جانا ہے. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. خداوند تو انہیں نام نام برکت دے. خداوند یہ کلام مقدس کا حوالہ جو پڑھا گیا ہے خداوند اس کے پیچھے کا مطلب ہمیں سکھا.
अपने गहरे भेद हमें सिखा, हमारे ईमान को बढ़ा, ताकि हम तेरे कलाम मुकद्दस के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करें। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरा पाक रूह खुदावंद अब इबादत का कंट्रोल संभाले। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में अपनी की हर रूह को खुदावंद यीशु के नाम में डांटते हैं और खुदावंद तेरे पाक अकबर को मांग लेते हैं, तेरी पाक हजूरी को मांग लेते हैं। सारा जलाल खुदावंद तेरे कदूस नाम को मिले, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सब कहेंगे आमीन, आमीन। तशरीफ रखे, खुदावंद आप सबको बरकत दे। प्रेज जीसस, हालेलुया। मेरे अजीजों, हम खुदावंद यीशु मसीह के शुक्रगुजार हैं आज के इस अजीम वक्त के लिए, इस अजीम टाइम के लिए जो खुदावंद ने हमें दिया, और हम यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं। मैं सोच रहा था, आप भी, मैं नहीं जानता, लेकिन आपको गौर करना चाहिए, क्योंकि पौलुस रसूल कहता है कि कलाम मुकद्दस पर गौर करो। पौलुस रसूल कहता है गौर करो और तुम्हें चीजें मिल जाएंगी। मैं गौर कर रहा था कि खुदावंद कितना रहीम और कितना अजीम है। मैं दो तीन सोशल मीडिया के ऊपर पास्टर्स की वीडियो देख रहा था, और उन्होंने कहा कि लोगों के पीछे, पास्टर्स के पीछे लोग नहीं होते हैं, वो चंद लोगों को लेकर चल रहे होते हैं। तो मैं सोच रहा था कि अगर खुदावंद यीशु ने इन पादरियों के हिसाब से कलाम का स्टैंडर्ड बनाया होता तो हम तो कहीं भी ना होते। लेकिन मैं खुश हूं, हालेलुया, हम खुश हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ा कमाल स्टैंडर्ड बनाया, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, हालेलुया। इसलिए हमें परवाह नहीं है कि हमारे पीछे हजारों लोग हों। सुने, इकोनॉमी में सारे ट्रैवल करते हैं, धक्का खाते हैं, बिजनेस वाले कम होते हैं, हालेलुया, और फिर प्राइवेट वाले और भी कम होते हैं। मैंने जहाज का सफर किया है, खुदावंद ने मुझे शर्फ अता की है, तो जो इकोनॉमी में जाते हैं ना, उनको थोड़ी थोड़ी जगह मिलती है और भरे हुए होते हैं। लेकिन जो फर्स्ट क्लास वाले होते हैं, हालेलुया, पूरा कैबिन उनके पास होता है। और फिर आता है चार्टर प्लेन, हालेलुया, वो प्लेन ही एक बंदे का होता है, हालेलुया। ये मैसेज वालों का चार्टर प्लेन है भाई, हर कोई इसमें नहीं चल सकता। इसके लिए खुदावंद यीशु की मलकियत चाहिए, बेटा या बेटी होना चाहिए, जिसको खुदा को अता करे, हालेलुया। आप इकोनॉमी में धक्के खाएं, हमें परवाह नहीं है, हम चार्टर प्लेन वाले लोग हैं भाई। तो मैं शुक्र करता हूं खुदा का कि खुदावंद ने ये चंद पादरियों के हिसाब से अपने कलाम का स्टैंडर्ड नहीं रखा। गॉड ब्लेस यू ब्रदर रहमान, गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छा लगा आपको दोबारा देख के, हालेलुया। इसीलिए छोड़ दे दुनिया के कह दिया, अरे लोग कम है, ये मुझे बताएं, खुदावंद यीशु मसीह के पीछे इतने मौजज़ात करने के बाद, इतनी अजीम खिदमत करने के बाद, खुदावंद यीशु मसीह के पीछे कितने लोग आए? 12, 82 आए, 12 रह गए, उन 12 में से भी एक ने धोखा दे दिया। आप लोगों की गारंटी नहीं दे सकते, आज हैं कल चले जाएंगे। मैं आपको बताता हूं, लोगों की गारंटी नहीं दी जा सकती, मगर खुदा के बीज की गारंटी दी जाती है। जिसमें खुदा का बीज है वो नहीं जाएगा, हालेलुया। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने, जितने बहन भाई ऑनलाइन सुनेंगे सुने, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, सुनती हैं, वो किसी गैर के पीछे। इसीलिए मैं खुद से सोच रहा था और बातचीत चल रही थी मेरी खुद से, और मैंने कहा खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तूने हमें चार्टर प्लेन वाला बनाया है, ये इकोनॉमी में धक्के खाने वाला नहीं बनाया, हालेलुया। हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद के। और मैं पहले भी ये बात कर चुका हूं कि ये कोई अवामी चर्च थोड़ी है जो अवाम से चले। अवामी चर्च चलते हैं अवाम से, समझे बात को। खुदा की कलीसिया चलती है खुदा से,
खुदा की कलीसिया में खुदा होना जरूरी है, अवामी कलीसियाओं में अवाम होना जरूरी है, अवामी पार्टियों के पीछे अवाम का होना जरूरी है, मगर खुदा के खानों के आगे खुदा का होना जरूरी है। हालेलुया। इसलिए क्या फर्क पड़ता है? आप अपनी अवाम के साथ खुश रहें। अवाम खुद भी मरती है, आपको भी वो सब मुबारक हो जो अवाम के पास है। आमीन। हमें अवाम वाला कुछ नहीं चाहिए भाई, हमें तो वो चाहिए जो खुदा यीशु के पास है। हालेलुया। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम अवामी लोग नहीं, हम खास लोग हैं। बाइबल तो यहाँ तक फरमाती है तुम शाही काहिनों का, अगर किसी ने पुराने अहदनामे की स्टडी की हो तो जाकर पढ़ें कि शाही काहिनों का फिरका कितना होता, कितने लोग होते थे उसके अंदर। अब शाही खानदान भी, सुने बड़ी खास बात है, शाही खानदान भी अवामी हो जाए तो फिर शाही और अवामी में कोई फर्क नहीं रहता भाई। आप शाही काहिनों का फिरका है, आपकी बात में और दुनिया की बात में कुछ तो फर्क होना चाहिए। अगर आपकी बात में दुनिया की बात में कुछ फर्क ना हो तो फिर आप एक हो गए, मगर खुदा के लोगों के अंदर और दुनिया के लोगों के अंदर फर्क है, उनकी बात में और हमारी बात में फर्क है। इसीलिए हमारी बात कहां पर आती है? कलाम पर। कलाम मुकद्दस जो कहते हैं वो फाइनल है, और हम शुक्रगुजारी करते हैं जहां 2 या 3। और मैं ईमान रखता हूं बहन भाई जितने ऑनलाइन देख रहे हैं उन्होंने भी देखा है यहाँ 2 या 3 से ज्यादा जमा है, और फिर ईमानदार जमा है, आम लोग नहीं, ईमानदार जो सच्चे दिल से खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, जो सच्चे दिल से खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलते हैं। आमीन। इसीलिए कभी भी सुने, एक खरगोश थी ना और एक खतनी, या खरगोश और कैंगरू लगा दे, दोनों की दोस्ती हो गई, और दोनों की, खरगोशनी की और कैंगरू की दोस्ती हो गई। तो 1 महीने बाद जो खरगोशनी थी वो उसने बच्चे दिए, उसने कहा खुदा ने मुझे बरकत दी है। और कैंगरू जो थी, मादा कैंगरू, उसने उसको मुबारकबाद दी, उसने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगले महीने उसके और बच्चे हो गए, अगले महीने उसके और बच्चे हो गए। आपको पता है खरगोश तकरीबन हर महीने बच्चे दे देता है। अब वो आए और कैंगरू को आकर थोड़ी, वो कहते हैं ना, क्या समझ गए, तनकीद का निशाना बनाया। देख खुदा ने मेरे को इतनी बरकत दी है, मेरे इतने बच्चे हो गए हैं, तुझे खुदा ने अभी तक उम्मीद नहीं लगाई, तुझे खुदा ने अभी तक बरकत नहीं दी। सुने कैंगरू ने क्या जवाब दिया? मादा कैंगरू ने कहा सुन, तू खरगोश है, तेरे यहाँ आवाम आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा जब एक आता है ना, हालेलुया, तो वो तुम सब पे भारी है। बात समझे? कैंगरू नायाब जानवर है, दुनिया के अंदर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और तकरीबन 11-12 महीने बाद उसका एक बच्चा होता है, 17 महीने बाद। सोचे, आप नायाब लोग हैं, यहां पर नायाब लोग आते हैं, कई जगहों पर खरगोश हर महीने पैदा होते हैं और हर महीने शैतान उनका शिकार कर देता है, लेकिन कैंगरू का शिकार करना इतना आसान नहीं। इसीलिए हम खास लोग हैं, हम चुने हुए लोग हैं। इसीलिए टेंशन ना ले, दुनिया क्या कहती है, दुनिया वाले क्या कहते हैं, कोई परवाह नहीं। बात पता है, जब हमारी नजरें गलत जगह होती हैं फिर हमें टेंशन होती दुनिया क्या कह रही है। जब हमारी नजरें सही जगह पर होती हैं, और बाइबल मुकद्दस फरमाती नजरें कहाँ रखनी है? कामिल करने वाले खुदावंद। जब वहां पर हमारी नजरें होती हैं तो फिर हमें कोई भी चीज तंग नहीं करती। हालेलुया। फिर हम लोग बिल्कुल बराबर रहते हैं, फिर हम लोग सब सेट रहता है हमारा। इसीलिए आज हमारी नजरें हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर होनी चाहिए। आमीन। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं आज के इस अजीम वक्त के लिए। आज फादर्स डे मनाया जा रहा है, दुनिया के अंदर सेलिब्रेट किया जा रहा है। मैं कल एक फंक्शन में गया हुआ था रात में, वो फैमिली बड़ी मोहब्बत करती है हमसे और उन्होंने दावत दी कि आपने लाजमी आना है। हम गए तो वो जो बेटी थी, जब हम वहां पर गए मैंने उसके सर पे प्यार दिया
تو اس بیٹی کی آنکھوں میں آنسو تھے, ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے, اور وہ کسی کو مس کر رہے تھے, کیونکہ اس بیٹی کا باپ تقریباً 5-6 سال پہلے اس دنیا سے چلا گیا. میں نے دیکھ کے تھوڑا سا غور کیا, میں نے کہا یہ اور کچھ نہیں, یہ صرف اپنے باپ کو یاد کر. کاش آج میرا باپ ہوتا اور اس بھائی کی جگہ میرے سر پہ پیار میرا باپ دیتا. تو باپ کی بات ہی کیا ہے بھائی. میں غور کر رہا تھا, باپ بیٹا روح القدس, یہ کیا بات ہے. خدا کسی اور آفس کو بھی تو رکھ سکتا تھا. ہاللیلویا. دانش بھائی, باپ کے آفس کے علاوہ بھی تو کوئی آفس رکھا جا سکتا تھا. یہ خدا نے پہلا اور بڑا آفس باپ کا ہی کیوں رکھا ہے, اور باپ کے اندر ہی اپنا نام کیوں چھپایا ہے. اور یسوع مسیح بھی آ کر کیوں کہتا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. آخر باپ کی کوئی بات تو ہے. ہاللیلویا. ہمارے پیارے بھائی ہیں, خداوند بیٹے کو تسلی دے. تقریباً چند دن پہلے ان کے والد انتقال کر گئے. اسی چرچ میں ان کی آخری رسومات ادا کی گئی. بیٹا سب بھی چھوڑ جائیں نا, خداوند یسوع بھی چھوڑ جائیں. میں آپ کے لیے خاص ایک آیت دانیل بولنا چاہوں گا. کلام مقدس میں لکھا ہے, میں تجھے یتیم نہ چھوڑوں گا. اب باپ ہو ماں ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. برادر برینم بھی کہتے ہیں, اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں کہ اس میسج کے اندر آپ کو ماں بھی ملے گی اور آپ کو باپ بھی ملے گا. کیونکہ میسج کوئی اور نہیں, یہ خدا کا کلام ہے. اور خداوند یسوع مسیح دانیل ہماری ماں بھی ہے, ہمارا باپ بھی ہے. ہاللیلویا. اسی لیے ٹینشن والی بات نہیں ہے. وہ جب جسمانی بدن ہم سے جدا ہوتا ہے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے, ہونا بھی چاہیے, کیونکہ ہمیں ایک وقت گزارا ہے. اور اگر آپ کو دکھ نہیں ہوتا, آپ کو خوشی نہیں ہوتی, آپ کو درد نہیں ہوتا, تو بھائی آپ انسان نہیں ہیں. کیونکہ اگر کوئی انسان ہے اس کو دکھ بھی ہوگا, اس کو خوشی بھی ہوگی. تو میں غور کر رہا تھا کہ خداوند نے یہ باپ کے آفس کو پہلے درجے پہ کیوں رکھا ہے. باپ بیٹا روح القدس. اس کا مطلب خداوند خود باپ ہونا بہت پسند کرتا ہے. اور باپ جو ہے وہ خدا کی ایک الہی صفت ہے. باپ ہونا ایک بڑے شرف کی بات ہے. اگر باپ ہونا کوئی چھوٹی صفت ہوتی, اگر باپ ہونا کوئی چھوٹا مقام ہوتا, تو خداوند کبھی بھی باپ بیٹے روح القدس کے القاب میں پہلا درجہ باپ کو نہ دیتا. اسی لیے خداوند شروعات ہی باپ سے کرتا ہے, کیونکہ باپ ہوگا تو آگے زندگی آئے گی. ہاللیلویا. تو میں کلام مقدس پہ غور کر رہا تھا, اور رات میں بھی میرے دل میں یہ بات چل رہی تھی کہ یہ خداوند نے باپ لفظ پہلے کیوں لیا. کیوں خداوند نے باپ کے اوپر اتنا زیادہ ایمفسس کیا. کیوں باپ لفظ کے اوپر, باپ القاب کو خدا نے اتنا پسند کیا کہ اپنے لیے چن لیا. میں حیران تھا. آخر کوئی تو اس کے پیچھے وجہ ہوگی کہ خداوند کو یہ باپ القاب اتنا پسند کیوں آیا. ہاللیلویا. خداوند جب خدا بھی نہیں تھا, جب وہ الوہیم تھا, الوہیم جو خود سے وجود رکھتا ہے, ابھی وہ خدا نہیں تھا, مگر خدا کے اندر یعنی الوہیم میں ایک باپ کی صفت تھی کہ میرے بچے, میرے لوگ جو میری پرستش کریں, جو میری تعریف کریں, جن کی میں دیکھ بھال کروں. اور خداوند نے سوچے ذرا, تھوڑا غور کریں, خداوند نے یہ پوری دنیا, سورج چاند ستارے, پیڑ پودے پھل, سمندر فضا ہوا, یہ سب کچھ صرف اس لیے بنایا کیونکہ وہ آپ کو اور مجھے پانا چاہتا تھا. سوچیں, جب ایک کپل کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنا بہترین گھر بناتے ہیں, بہترین سسٹم بناتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی اولاد کو پانا چاہتے ہیں.
میں سوچ رہا تھا کہ یہ خداوند کی کیسی عظیم صفت تھی کہ خداوند نے اتنا سب کچھ بنایا کیونکہ وہ مجھے پانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ آپ کو پانا چاہتا تھا. ہاللیلویا. اور پھر دیکھیں ایک اچھا باپ ہوتے ہوئے اس نے ہمیں پایا بھی. آج ہم کھوئے ہوئے نہیں ہیں، ہم بچے ہوئے ہیں. خداوند نے ہمیں بچایا ہوا ہے، خداوند نے ہمیں اچھے حالات میں رکھا ہوا ہے، خداوند ہمیں سب کچھ پرووائڈ کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارا باپ ہے. اور وہی صفت یعنی باپ کی صفت جو خداوند میں موجود تھی. دانش بھائی، وہی صفت جو باپ میں موجود تھی یعنی خدا میں موجود تھی، باپ کی صفت، وہی صفت خداوند نے پھر ایک مرد میں ڈالی. اور وہی ساری خصوصیات جو خدا کے باپ کے آفس میں تھی وہ خداوند نے ایک مرد میں ڈال دی تاکہ جو کچھ خدا نے کیا ہمارے لیے وہ زمین پر رہتے ہوئے ایک مرد اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کر سکے. اور بائبل مقدس انسان کی کتاب میں کیا فرماتی ہے؟ میں چاہتا ہوں آپ دوبارہ پڑھیں. صادق کا باپ نہایت خوش ہوگا. سنیں، یہ خوشی صرف صادق کے باپ کے لیے ہے. اس کا مطلب ہے کہ دوسرے کا باپ خوش نہیں ہو سکتا. اب یہ صادق نام کی نہیں، صادق بھائی کی بات نہیں ہو رہی، یہ صادق نیک شخص کی بات ہو رہی ہے. یہ صادق وہ ہے جس کی پرورش صحیح کی گئی ہو. یہ صادق وہ ہے جس کی راہ کلام کے مطابق بنائی گئی ہو. ہاللیلویا. وہ کیا ہے؟ اس کا باپ کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. اس کا باپ خوشی کو حاصل کرتا ہے اور دانشمند کا باپ اس سے شادمانی کرے گا. اور جو دانشمند ہے، جو صادق ہے، جو بچہ اچھا نکل آیا ہے، اس کی ماں بھی خوش ہوگی، اس کا باپ بھی خوش ہوگا. اور یہی پریکٹیکلی ہمارا آسمانی باپ بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کے اس طریقے کے بیٹے اور بیٹیاں ہوں جن سے وہ خوش ہو سکے. ہاللیلویا. تو جب میں وہاں پر فنکشن میں تھا، میں نے دیکھا کہ وہ بیٹی اپنے باپ کو مس کر رہی ہے اور یہ بیٹا بھی اپنے باپ کو مس کر رہا ہے. تو میں بس یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اپنے آسمانی باپ کو مس نہیں کرتے؟ صرف سوال ہے میرا. لیکن مجھے اتنی اس کی قربت کی پرواہ ہوتی ہے، میں اور کسی کی بات نہیں کرتا کہ میں سارے کو وہاں جاتا ہوں، میں یہاں بیٹھا ہوتا ہوں، کوئی ہوں یا نہ. مجھے اتنی اس کی قربت کی پرواہ ہوتی ہے کہ جو وقت اس کا ہے میں اسے دیتا ہوں. اور پھر یقین جانے، پھر خدا کو بھی میری پرواہ ہوتی ہے. باپ کو بھی اس بیٹے کی فکر ہوتی ہے جو بیٹا اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. باپ کو بھی اس بچے کی پرواہ ہوتی ہے جو بچہ اس کا تابعدار ہوتا ہے. اب آپ تقاضا کریں کہ خداوند ہمیں ساری برکتوں سے مالا مال کرے، مگر آپ اچھے بیٹے یا بیٹی ثابت نہ ہو تو ایسا کیسے ہوگا؟ سوچیں ذرا، آج غور کریں. آج جو فادرز ڈے منایا جا رہا ہے، جتنے والدین یہاں پر بیٹھے ہیں سب کے لیے ہے، والدوں کے لیے ہے، اور جو آنے والے وقت میں والد بنیں گے ان کے لیے بھی ہے. کہ یہ جو والد کا آفس ہوتا ہے نا، یہ جو باپ کا آفس ہوتا ہے، یہ بڑا خاص ہے. جب آپ باپ کے آفس میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کے اوپر کچھ زندگیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. کیا آپ کو بات سمجھ لگ رہی ہے؟ جب آپ باپ کے آفس میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کے اوپر کچھ زندگیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور اگر آپ اس ذمہ داری کو اچھے سے نہیں نبھاتے تو ان کا حساب کس سے ہوگا؟ پڑوس والے سے؟ کس سے؟ بالکل، جس کی ذمہ داری ہے. اگر خدا نے آپ کو ایک بیٹی کا باپ بنایا ہے، اگر خدا نے آپ کو ایک بیٹے کا باپ بنایا ہے تو پھر اس بیٹی اور بیٹے کا حساب بھی خدا آپ سے لے گا.
کیا آپ اس کی پرورش کیسی کر رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہے ہیں، آپ اس کو کتنا کلام کے مطابق لے کر چل رہے ہیں۔ اور ہماری کرسچن کمیونٹی کے اندر سب سے خطرناک چیز آج یہ کہ باپ والے آفس میں تو چلے جاتے ہیں لوگ، باپ تو بن جاتے ہیں، باپ تو بن جاتے ہیں، اولاد خدا دے دیتا ہے، مگر کبھی حقیقی باپ نہیں بن پاتے۔ کلام سے دور رہنا، بچوں کو چرچ سے دور رکھنا، کلام مقدس سے دور رکھنا، خدا کی حضوری سے دور رکھنا، اور بعد میں یہی بچے آگے مسئلے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ جب مسئلے بہت سر کے اوپر چلے جاتے ہیں تو پھر کسی پادری کے پاس آ کر اپنے شکوے گلے کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں شکوے گلے؟ آپ نے تو ان کو ایسا بنایا ہے۔ مجھے بتائیں، کیا ہمارے آسمانی باپ نے اس زمین میں کسی چیز کی کمی چھوڑی؟ ہمارے لیے کھانے کو پرووائڈ کیا، ہمارے لیے روشنی پرووائڈ کی، ہمارے لیے فضا پرووائڈ کی، ہوا پرووائڈ کی، درخت پرووائڈ کیے، اچھا ماحول پرووائڈ کیا۔ جب اس نے ہمارے لیے کسی چیز کی کمی نہ چھوڑی، اور پھر سب سے بڑھ کے کیا اس نے ہمیں اپنی حضوری دی؟ تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے، ہاللیلویہ، کہ ہم بھی یہ سب کچھ اپنی اولاد کے لیے کریں، ایز اے پیرنٹ، ایز اے والدین۔ اگر آپ نیت کے ساتھ، اچھے جوش کے ساتھ خدا کی حضوری میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں تو یقین جانے وہ بچے کبھی بھی آپ کو فیل نہیں کریں گے۔ وہ بچے کہیں نہ کہیں جا کر آپ کے لیے برکت کا سبب ٹھہریں گے، ہاللیلویہ، کیونکہ خدا نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اور خداوند کے خادم ابراہیم کہتے ہیں کہ خدا کبھی بھی اپنے وعدوں سے پیچھے نہیں مڑتا۔ بائبل مقدس شہادت دیتی ہے خداوند یسوع مسیح کل اور آج بلکہ اب تک وہ پیچھے مڑ نہیں سکتا بھائی، وہ اپنے کلام کو پورا کر کے رہتا ہے، ہاللیلویہ۔ اسی لیے اگر ہم انسان ہوتے ہوئے دیکھیں، جب ہمارے آسمانی باپ نے پہلا آفس جو اس نے لیا وہ باپ کا لیا، اس کو اتنا پسند آیا، اور خدا کے خادم ابراہیم کہتے ہیں کہ خدا کو وہ آفس اتنا پسند آیا کہ اس نے چاہا کہ میرے بیٹے بھی والد بنے، میرے بیٹے بھی باپ بنے، تاکہ ان کو پتا ہو کہ باپ کی محبت کیا ہوتی ہے، تاکہ ان کو پتا ہو کہ اولاد سے محبت کیا ہوتی ہے، تاکہ یہ جانے کہ میں نے ان کے لیے کیا کیا ہے۔ یسوع مسیح نے باپ کے آفس میں ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، ہمارے لیے سب کچھ کریٹ کر دیا، ہر ایک چیز ہمارے لیے پرووائڈ کر دی، مگر پھر بھی ہم صاف لفظوں میں کہوں تو ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ لیکن کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے۔ سنیں، ایک جو حقیقی باپ ہے، ایک جو خدا پرست باپ ہے، وہ اپنے بچے کو بہت کچھ بنا دیتا ہے، وہ اپنے بچے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، بیٹے کے لیے بڑا کچھ کر دیتا ہے۔ میں آپ کو ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں، خداوند کے خادم ابراہیم کا میسج ہے ایک قیدی، اس کا پیرا نمبر 53، موسیٰ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اب موسیٰ جانتا تھا کہ وہ چھڑانے والا پیدا ہوا تھا، وہ یہ جانتا تھا، اور کیا آپ نے اس مقصد پر غور کیا جو موسیٰ کا تھا، جو اس کی ماں نے اس کی دائیا ہوتے ہوئے اسے بتایا تھا؟ اس میں کوئی شک نہیں، جب ننھا موسیٰ پیدا ہوا تو اس کی ماں نے کہا ہوگا، موسیٰ تو جانتا ہے تیرے والد عمران اور میں نے مسلسل دعا کی تھی، اور ہم جانتے تھے اور کلام میں دیکھا تھا یہ مخلصی دینے والے کی آمد کا وقت تھا۔ میرا سوال ہے کہ کیا موسیٰ صرف عمران کے گھر ہی پیدا ہو سکتا تھا؟ نسیم بھائی دانش ہے، کیا موسیٰ
इमरान और यूपत के घर ही पैदा हो सकता था। क्या बाकी इसराइली मर गए थे? बाकी भी तो इसराइली थे, बाकी भी तो वादे के अंदर थे, बाकी भी तो कलाम को जानते थे। हालेलुया। मगर यूपत और इमरान में एक फर्क था। यूपत और इमरान, बाइबल मुकद्दस फरमाती है और ब्रदर ब्रैनम इस चीज का हवाला देते हैं, मुसलसल दुआएं करते रहते थे और दुआ में कहते रहते थे, खुदावंद ये तेरे वादे का वक्त है, खुदावंद ये तेरे वादे का वक्त है। हालेलुया। सुने, जो फैमिली खुदा को खुदा के वादे याद दिलाती है, उसी फैमिली के अंदर खुदा मूसा जैसे लोगों को भेजता है। मूसा का कमाल नहीं था भाई। हालेलुया। मैं कहता हूं ये इमरान और यूपत का कमाल था। मूसा किसी और घर भी पैदा हो सकता था। मूसा को अपने घर लाने वाले वो थे। हालेलुया। क्यों भाई? सुने नसीम भाई, ये आपने तो डिसाइड नहीं किया था ना कि आपके घर पैदा होगा। हाँ, समझ रहे हैं बहन सोनिया, आपने तो डिसाइड नहीं किया था स्टिफनेस यहाँ पैदा होगा, मगर कई तो दुआएं होती हैं। हालेलुया। इसीलिए एक जो बाप होता है, एक जो माँ होती है, जो दुआ परस्त होते हैं, हालेलुया, खुदा परस्त होते हैं, वो खुदा की हजूरी से अच्छा बीज अपने पास ले आते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। खुदावंद के खादम भाई ब्रैनम कहते हैं, यूपत मूसा से कहती है, तू जानता है तेरे वालिद इमरान और मैंने मुसलसल दुआ की थी। हालेलुया। और हम जानते थे और कलाम में देखा था ये मखलसी देने वाले की आमद का वक्त था और हमने दुआ की, खुदावंद खुदा हम मखलसी देने वाले को देख सके। हम मखलसी देने वाले को एक रात एक रोया में खुदावंद ने हमें बताया कि तू जन्म लेगा और तू मखलसी देने वाला होगा। ये करती है एक माँ बाप की दुआ। हालेलुया। क्या यूपत और इमरान के घर पहले बच्चे नहीं थे? मरियम थी, बेटी भी थी, हारून था, बेटा भी था। समझे बात को, गहराई में जाए। एक जो दुआ परस्त खानदान होता है, खुदा परस्त खानदान होता है, वो खुदा की हजूरी से खास लोगों को बुलवा लेता है भाई, आम लोगों को नहीं। सुने, मरियम खुदा परस्त थी, मरियम खुदा परस्त थी। दुनिया की सबसे हसी मस्ती मरियम की कोख से जन्म लेकर आई। एक जो खुदा परस्त बाप होता है, एक जो खुदा परस्त माँ होती है, उसके यहाँ आम औलाद पैदा नहीं होती है। देखें कैसी खास बात है। इमरान ने और मैंने मुसलसल दुआ की थी। एक खुदा परस्त बाप, एक खुदा परस्त माँ मुसलसल अपने बच्चों के लिए दुआ करते थे कि खुदा उन्हें अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करे, खुदा उन्हें अपने लिए इस्तेमाल करे। हालेलुया। सुने आगे क्या ब्रदर कहते हैं, हम बादशाह के हुक्म से नहीं डरे थे, हमने परवाह नहीं की कि बादशाह ने क्या कहा था। दुनिया क्या कहती है, दुनिया के बादशाह, गवर्नमेंट क्या कहती है, हमें क्या परवाह। हमारे लिए एक ही बादशाह का कानून मायने रखता है और वो खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह खुदावंद रब्बुल अफ़वाज है, जिसने ये बाप का ऑफिस इमरान को बख्शा। और जब बाप का ऑफिस इमरान को बख्शा तो जाकर ये पूरा मैसेज पढ़ लेना, एक कैदी और मूसा के मुतालिक तालीम। उसके अंदर ब्रदर ब्रैनम ने बहुत तफसील से इसके ऊपर बात की है कि क्यों खुदा ने इमरान के दिल को इतना उभारा। जब आप खुदा परस्त होते हैं ना, तो बाइबल मुकद्दस आपको पता है ये पाक निकाह क्यों माना जाता है। और पाक निकाह मैंने कई निकाह
पढ़े नहीं, पढ़वाए हैं और करवाए हैं। उसके अंदर एक लफ्ज बोला जाता है ताकि खुदा परस्त नस्ल परवान चढ़े। खुदा परस्त नस्ल, और जब खुदा परस्त नस्ल आती है ना तो वो खुदा को जाहिर करती है, वो खुदा को सामने लेकर आती है, वो खुदा के कामों को जाहिर करती है। हालेलुया। और खुदा परस्त नस्ल तब आती है जब माँ बाप खुदा परस्त हो। इसीलिए आज के इस फादर्स डे के ऊपर तमाम वालिदों के लिए, माओ के लिए बस ये पैगाम है कि खुदा परस्त हो जाए। जो बनने को है वालिद, वो भी खुदा परस्त हो जाए। आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी नस्ल के वसीले खुदा क्या क्या कर सकता है। हालेलुया। दुआओं के सबब से मैं सोच सकता हूं, देखिए आप खुद भी ये बात सोच सकते हैं कि मूसा कहीं और पैदा हो सकता था। कौन कौन इस बात को मानता है? हो सकता था मूसा कहीं और, मगर मैं समझता हूं कि पहले नंबर पे ये खुदा का चुनाव और दूसरे नंबर पर ये इमरान और यूबत की दुआएं थी, क्योंकि वो खुदा के वादे को लेकर बैठ गए थे। अब मैं चाहता हूं कि कोई भी खुदा परस्त माँ बाप जरा अपने कदमों पर खड़ा हो जाए, जो खुदा परस्त है कोई यहां पर? खड़े हो जाए, वादे को लें और खड़े हो जाए अपने बच्चे के लिए। क्या चाहते हैं आप अपने बच्चे के लिए? बाइबल मुकद्दस फरमाती है लड़के की उस राह पर तरबियत कर जहां पर अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं, जरा वो वादा लेकर खड़े हो जाए। कौन चाहता है मेरा बेटा दाऊद की तरह हो? दाऊद के वादे को लेकर खड़े हो जाए। हालेलुया। परवाह किस बात की है? खुदा करना जानता है, खुदा कर सकता है। हालेलुया। खुदा के यहां कुछ नामुमकिन है? नो सर। तशरीफ रखिए। आप जो चाहे खुदा आपके लिए कर सकता है, आपके बेटों के लिए, बेटियों के लिए कर सकता है। फक्त दुआ के अंदर खुदा के वादे के साथ खड़े हो जाए। यही तो फर्क था उन बाकी माँ बापों के अंदर और यूबत और इमरान के अंदर। क्योंकि यूबत और इमरान खुदा के वादे के साथ खड़े हो गए थे। उन्होंने परवाह नहीं की कि दुनिया का सुने। जब बादशाह ने ऑर्डर जारी किया कि सबको मार दिया जाए, सबको मार दिया जाए, तो बाकी बादशाह के ऑर्डर से डर रहे थे, मगर यूबत और इमरान खुदा के वादे पर खड़े हुए थे। उनका ईमान था अगर खुदा हमें फजल देगा तो उसकी परवाह भी खुदा खुद करेगा। खुदा परस्त माँ बाप होना दुनिया का बेहतरीन तोहफा है। और सुने, खुदा परस्त बच्चों के माँ बाप होना नेमत है। खुदा परस्त औलाद निकल आना फजल है। और ये सब तब होता है जब एक घराना खुदा के वादों के साथ खड़ा रहता है। हालेलुया। ये चंद बातें वालिदैन के लिए, और जो औलाद है वो सुने गौर से। बाइबल मुकद्दस फरमाती है तो अपने बाप और अपनी मां की ईद यहां पे ये तो नहीं लिखा बेटा कि माँ बाप अच्छा हो तो वो इज्जत करती है। हाँ, कोई मुझे बता दे, शायद मैं गलत पढ़ रहा हूं। हाँ भाई रहमान भाई, मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा हूं। यहां पर क्या लिखा है? तू अपने बाप और अपनी मां की, और वो जैसे भी है। समझ लग रही बात? मेरा बाप तो शराबी है, मैं उसकी इज्जत क्यों करूं? बाइबल के खिलाफ क्यों जाना भाई? दुनिया के अंदर एक ही खादम थे जिन्होंने अपने बाप की स्टोरी भी खोल के रख दी, अपनी भी खोल के रख दी। ब्रदर ब्रैनम मिलानी अपने मैसेज में कहते कि मेरा बाप शराबी था, मगर मैंने कभी अपने बाप का हुक्म नहीं डाला। और फिर उसी शराबी बाप को मरने से पहले ब्रदर ब्रैनम ने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया। आप इज्जत करें भाई, खुदा के कलाम के आगे पीछे ना जाए, कलाम से ऊपर ना जाए भाई। तुम कलाम से नीचे हो, बड़े नहीं हो। हालेलुया। मेरा बाप मुझसे अच्छा सलूक नहीं करता, कोई बात नहीं,
कलाम मुकद्दस को फॉलो करो, क्योंकि यहां पर कहीं भी नहीं लिखा कि माँ बाप अच्छा होगा तो उसकी इज्जत करना। यहां पर लिखा है तू अपने बाप और अपनी माँ की बस इज्जत करना, ये फर्ज है। हालेलुया। ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। ये वादे के साथ हुक्म है, ये आपके लिए हुक्म है। सुने, इस चीज की परवाह न करें कि माँ बाप अभी कलाम से दूर है। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जिनका माँ बाप कलाम से दूर था, जिनका माँ बाप इस चर्च में भी नहीं आता था, मगर उनकी इज्जत की वजह से उनके माँ बाप की जिंदगियां तब्दील हो गई है। आपको क्या पता खुदा कैसे काम करता है। मुझे जगह याद नहीं आ रही, मैं किसी जगह में ऐसे सुना रहा था, मलीर कैंट में शायद, तो मैं उनको बता रहा था कि खुदा को लोगों ने डब्बे में बंद कर दिया है, अपनी सोच के डब्बे में। वो समझते हैं कि खुदा हमारी सोच के मुताबिक काम करेगा। फैसल भाई, क्या खुदा आपकी सोच के मुताबिक काम करेगा? नो बहनों, खुदा आपकी सोच के मुताबिक, ओ भाई, खुदा अपनी सोच के मुताबिक काम करता है। इसीलिए ये सोचना ऊपर नीचे करना बंद कर दें। खुदा उनके खालिद भाई ब्रैनम कहते हैं कलाम मुकद्दस जैसा लिखा है उसको वैसा मानो। That's it। हालेलुया। और यहां पर बाइबल मुकद्दस में लिखा है तो अपने बाप और अपनी मां की, ये जवानों, ये आपके लिए फाइनल मैसेज है खुदा का। इसके साथ आपकी बरकत जुड़ी है। एक घराना जिसमें खुदा परस्त माँ बाप है, एक घराना जिसके अंदर खुदा परस्त बाप है, जिसके अंदर खुदा परस्त माँ है, मुझे बताएं अगर वो दोनों खुदा परस्त हैं तो क्या आगे से औलाद खुदा परस्त ना होगी? क्यों? क्योंकि उस औलाद की परवरिश ठीक की जाएगी, उस औलाद की राह को ठीक रखा जाएगा और खुदा ऑटोमेटिकली अपने वादों को पूरा करना शुरू हो जाएगा। फिर एक साल की किताब में जो लिखा है कि अपने बाप को क्या कर, अपनी मां को क्या कर, वो करेगा भाई। बेटी करेगी, बेटा करेगा, क्योंकि माँ बाप ने शुरू से उसकी रहनुमाई क्या की है, खुदा के कलाम की। इसीलिए इस फादर्स डे के ऊपर बराए मेहरबानी मैं यहां पर इसे क्लोज करूंगा और सिर्फ इस बात पर गौर करें, इस फादर्स डे के ऊपर अपनी और अपनी औलाद के दरमियान जो रिश्तेदारी है उसको सही करें। आपके और आपके आसमानी बाप के दरमियान जो रिश्तेदारी है उसको सही करें। इस भूल में ना रहें कि आपकी समझ बहुत ज्यादा है। मैं आपको एक चीज बता दूं, कई लोग इस भूल के अंदर चर्च में भी होते हैं। पास्टर साहब को क्या पता, खुदा उनके खालिद भाई ब्रैनम कहते हैं कि चर्च के अंदर सबसे बड़ा रूहानी शख्स आपका पास्टर है। उसके ऊपर कोई रूहानी नहीं होता, उसके ऊपर कोई समझदार नहीं है। सबसे ज्यादा समझदार भी वो है, रूहानी भी वो है, खत्म। और आपके ऊपर ये फर्ज है भाई, एज अ बिलीवर होते हुए, एज अ मसीही क्रिश्चियन होते हुए, कि हम अपनी रिलेशनशिप को पहले नंबर पर अपने आसमानी बाप के साथ दुरुस्त करें। देखें, जिसकी रिलेशनशिप उसके आसमानी बाप के साथ दुरुस्त होगी, खुदा के साथ दुरुस्त होगी, उसको बताना नहीं पड़ेगा टाइम क्या है, वो लेट नहीं होगा। बस मैं इतनी सी बात आपको बता दूं, इसका मतलब आपके रिलेशन ऊपर नीचे, वो रिलेशन से अगर आपको बरकत नहीं मिल रही, इसका मतलब आपके आसमानी बाप के साथ आपकी रिलेशन ऊपर नीचे है। इसका मतलब बाप को कोई चीज पसंद नहीं आ रही है, इसलिए बाप ने अपना हाथ हटाया हुआ है। और याद रखिए, जब बाप का हाथ हट जाता है ना सर से, तो फिर आंखों में आंसू रहते हैं। मैंने देखे, मैं बता नहीं सकता वो बेटी कैसा महसूस कर रही थी।
اور یہ جتنے بہن بھائی جو برکت نہیں حاصل کرتے، یہ جتنے آن لائن سن رہے وہ بھی اس بات کو سن لیں، اور جن کی آنکھوں میں ہمیشہ آنسو ہی رہتے ہیں غم کے، اس کا مطلب آپ کے سر پہ آپ کے آسمانی باپ کا ہاتھ نہیں ہے۔ درست کریں اپنے ریلیشن کو اپنے آسمانی باپ کے ساتھ، اور پھر اپنے خاندانی سسٹم کو درست کریں۔ والدین اپنے بچوں کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ کو درست کریں، اور بچے اپنے والد کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ اپنے رشتے کو درست کریں۔ آپ نہیں جانتے، جس دن یہ ماں آپ سے لے لی جائے گی اس دن آپ کو احساس ہوگا، جس دن یہ باپ آپ سے لے لیا جائے گا اس دن آپ کو احساس ہوگا، لیکن اس دن صرف آنکھ میں آنسو رہ جائیں گے اور دل میں پچھتاوا، کیونکہ پھر شفقت کا ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوگا۔ پھر آپ کسی کو اپنا باپ نہیں کہہ سکیں گے، پھر آپ کسی کو اپنی ماں نہیں کہہ سکیں گے۔ بھائی اب وقت ہے۔ میں اپنے والد سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا پاکستان کے اندر میں نے سب سے بڑا اسکیم دیکھا ہے، اور وہ اسکیم پتہ کیا ہے؟ جنازہ۔ علیشہ بھائی، سب سے بڑا اسکیم کیا ہے؟ لاکھوں روپے کا اسکیم ہے۔ جس بندے کو زندگی میں کبھی چائے بھی نہیں پوچھی ہوتی، اس کی قبر پہ ہزاروں کے پھول، جس بندے کو بٹھا کے روٹی نہیں کھلائی ہوتی، لاکھوں روپے کا کھانا اس کی میت پہ دے رہے ہوتے ہیں۔ کیا فائدہ؟ اسکیم۔ جس ماں باپ کی عزت نہیں کی ہوتی زندگی پر، بعد میں ان کے مقبرے تیار کر دیے جائیں، کیا فائدہ؟ خداوند کے خادم ابراہیم کہتے ہیں جب تک آپ کا ماں باپ زندہ ہے اس کے گلے میں ہاتھ ڈالیں، جب تک ماں باپ زندہ ہے اس کو چاکلیٹ گفٹ کریں، جب تک ماں باپ زندہ ہے اس کو کپڑے گفٹ کریں، جب تک ماں باپ زندہ ہے اس کو اچھا کھانا کھلائیں، جب تک ماں باپ زندہ ہے اس کی عزت کریں، جب تک ماں باپ زندہ ہے اس کو سلام کریں۔ مر جانے کے بعد وہ کیا دیکھے گا؟ ہاللیلویا! بائبل مقدس فرماتی ہے اپنے باپ کی اور ماں کی کیا کر؟ مرنے کے بعد عزتیں نہیں ہوتی، عزت جیتے جی ہوتی ہے۔ عزت اس نے دیکھ کے تجھے برکت دینی ہے، اس کے مرنے کے بعد تجھے کون برکت دے گا؟ عمر دراز اس کے ہاتھ رکھنے سے ہوگی۔ بھائی بات سمجھ لگ رہی ہے؟ جانا نہیں تھا میں نے، لیکن خدا کا روح فرماتا ہے اپنے ریلیشن شپ کو درست کریں، ورنہ آپ زندگی کی سب سے بہترین جو خدا نے برکتیں رکھی ہیں ان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ماں باپ ہونا ایک برکت ہے، خدا پرست ماں باپ ہونا اس سے بڑی برکت ہے، خدا پرست اولاد ہونا اس سے بڑی برکت ہے، خدا پرست رشتہ دار ہونا اس سے بڑی برکت ہے۔ عزت کریں ان رشتوں کی، جب تک وہ حیات ہیں تب تک خدا را ان کی رسپیکٹ کریں، جو کر سکتے ہیں ان کے لیے کریں، اسی سے آپ کی برکت جڑی ہوئی ہے، اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے، کسی نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیا ہوتا ہے، لیکن کیا یسوع مسیح نے نہیں کہا تھا کہ تم اپنے دشمنوں سے بھی محبت کرنا؟ یہ تو بھیڑ اپنے ہیں۔ سمجھ لگ رہی ہے؟ یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جن باتوں کو میں کر کے دکھایا ہے، میں نے کیا ہے یہ باتیں، دل پہ پتھر رکھنا پڑتا ہے، کرنی پڑتی ہیں، مگر انہی میں برکت ہے، انہی میں برکت ہے۔
जितने बहन भाई आप यहाँ मौजूद हैं, अगर आपके माँ बाप जिंदा है उनकी रिस्पेक्ट करें। अगर आपकी औलाद खुदा परस्त है, अगर आपकी औलाद गाती है, आपकी औलाद खुदा की खिदमत करना चाहती है, तो भाई उनके रास्ते की रुकावट ना बने। खुश हो कि आपके घर में खुदा ने किसी को तो उठाया है। खुश हो। मैंने ऐसे बेकार माँ बाप देखे हैं, बेवकूफ माँ बाप देखे हैं कि बच्चा खुदा की खिदमत के लिए आगे आता है, उसे बोलते तूने नहीं जाना। आपको खुश होना चाहिए। यह आपके लिए फख्र की बात होनी चाहिए कि आपके घराने में से किसी को खुदा ने खिदमत के लिए चुना है। आप सोच भी नहीं सकते। पुराने अहदनामा के अंदर सिर्फ एक खानदान था, एक घराना था, एक कबीला था जो खुदा की खिदमत कर सकता था। किसको उसका नाम पता है? लावी का कबीला। और लोगों की ख्वाहिश होती थी कि काश हम खिदमत कर सके, मगर खिदमत के लिए लावी में से होना जरूरी था। यहूदा के कबीले की भी ख्वाहिश होती थी कि हम खिदमत कर सके। आशर के कबीले की, बिन्यामीन के कबीले की, इफ्राइम के कबीले की ख्वाहिश होती थी कि हम खिदमत कर सके, मगर यह शर्त सिर्फ लावी के पास था। अरे शुक्र मनाओ कि कोई यस्सु उस अजीम लावी की नस्ल में से निकल आया है। और जो खुदा परस्त माँ बाप है ना, वो तो कोशिश करता है कि हमारा बच्चा, हमारा बेटा, हमारी बेटी उस नस्ल में से आ जाए। ये हमारे लिए एक शर्त की बात है। इसीलिए बराए मेहरबानी मैं फिर से क्लोज करते हुए सिर्फ ये बात कहूंगा, अपनी रिलेशनशिप पहले नंबर पर अपने आसमानी बाप के साथ दुरुस्त करें। खुदावंद के साथ दुरुस्त करें अपनी रिलेशनशिप। अपनी रिश्तेदारी अपने बाप के साथ दुरुस्त। सुने, बागे अदन में रिश्तेदारी कितनी अच्छी थी आदम और हव्वा की अपने खुदा बाप के साथ थी। कोई काम करना पड़ता था नहीं, सब कुछ तैयार होता था। मगर रिलेशनशिप खराब हुई, रिलेशनशिप खराब हुई, परेशानी आ गई, मुसीबत आ गई। लेकिन अब खुदा ने दोबारा मौका दे दिया कि हम उस रिलेशनशिप को सही कर लें। तो आज जब आपके पास मौका है तो उस रिलेशनशिप को सही करें खुदा के साथ। फैमिलीज आपस में अपनी रिलेशनशिप सही करें। यू नो, ब्रदर ब्रैनम को एक चीज़ बड़ी पसंद थी। और जब आप ब्रदर ब्रैनम की मैसेजेस की स्टडी करें तो ब्रदर ब्रैनम कहते थे कि आपकी फैमिली प्रेयर होनी चाहिए। मैं मजीद कोई कोट नहीं दूंगा, हमारा वक्त हो चुका है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि आपकी फैमिली प्रेयर होनी चाहिए। फैमिली प्रेयर क्या? दिन के अंदर एक वक्त रात में आप गुजार लें, रात में कोई वक्त रख लें, शाम में कोई वक्त रख लें, सुबह में कोई वक्त रख लें, जब आपकी पूरी फैमिली इकट्ठी हो, आप हो, आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हो, बैठे हैं, मिलके दुआ करें, खुदा का शुक्र करें उस फैमिली के लिए जो खुदा ने आपको दी है, उन सारे रिसोर्सेज के लिए जो खुदा ने आपको दिए हैं। मगर हमारे यहाँ ये नहीं होता, हमारे यहाँ उल्टा सिस्टम होता है। हमारे यहाँ जब भी माँ बाप इकट्ठे होते हैं, बच्चे इकट्ठे होते हैं, तो बुराइयों के लिए होते हैं, बख्तोइयाँ, चापलूसियाँ। इसीलिए जो जेल में होता है वो भी, हाँ जी, वो भी सीधी बात। इसीलिए खुदा परस्त खानदान का एक नमूना बने। देखें, खुदावंद यीशु मसीह का नमूना ले। क्या खुदावंद यीशु मसीह को दुख बर्दाश्त नहीं करना पड़ा? खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? ऐ बाप मेरी नहीं, बाप की मर्जी पूरी करते करते दुख बर्दाश्त कर रहे हैं। तो गीत भाई, दानिश भाई, हाँ बहनों, माँ बाप की मर्जी पूरी करते हुए थोड़ा सा दुख हो जाए तो कोई मसला है? आपके यीशु ने भी किया उसने भी, कर लो, कोई बात नहीं। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। यीशु ने दुख बर्दाश्त किया। बाइबल कहती है उसे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से। भाई, कुछ बर्दाश्त करने से कुछ बड़ा आता है। इसीलिए आज वक्त है कि हम खुदावंद के साथ, अपने आसमानी बाप के साथ अपने रिलेशन को दुरुस्त करें, एक दूसरे के साथ
अपने रिलेशन को दुरुस्त करें, खानदानी तौर पर, कलीसियाई तौर पर, मसीही एतबार से एक दूसरे के साथ ज़्यादा पेवस्ता हो, एक दूसरे की इज्जत करें, और जब तक इंसान जी रहा है तब तक उसके लिए कुछ करें, क्योंकि मरने के बाद आप किसी और का पेट ज़रूर उसकी लाश रख के भर देंगे, मगर उसके पेट में एक निवाला भी नहीं जाएगा। जिस कब्र में आप उसको दफन करेंगे उस पर आप जरूर फूल फेंकेंगे, मगर उसके गले में एक फूल भी नहीं रखेंगे। समझे? जो कर सकते हैं अभी करें। आज आपके पास वक्त है, अपनी जिंदगी को सुने। आपको पता है, लोग कहते हैं मसीही जिंदगी, का पूरा मैसेज है। दानिश भाई को मैंने ऐप इंस्टॉल करवाई है, messagehub.com। आप भी प्ले स्टोर पर जाएं, मैसेज हब 2026 ऐप इंस्टॉल करें, आपको उस पर मैसेज मिलेगा। क्यों बहुत से मसीहियों के लिए मसीही जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। मसीही जिंदगी गुजारना मुश्किल नहीं है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे ज्यादा खुशी से भरी हुई जिंदगी मसीही जिंदगी। जब आप हकीकी मसीही जिंदगी गुजारते हैं ना, आपको शिकवे नहीं होते। जब आप हकीकी मसीही जिंदगी गुजारते हैं, आपकी जेब में पैसे की कमी नहीं होती। जब आप हकीकी जिंदगी गुजारते हैं, आपके दिल में मोहब्बत की कमी नहीं होती, क्योंकि ये सब मसीह के तोहफे हैं, मसीह कवर कर चुका है। इसीलिए आज वक्त है कि हम अपनी रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ, मसीह के साथ, अपने लोगों के साथ दुरुस्त करें। कौन कौन चाहता है कि हम अपनी रिलेशनशिप अपने सबसे पहले अपने खुदावंद के साथ दुरुस्त करें, फिर अपने खानदान के साथ दुरुस्त करें, अपने बीवी बच्चों के साथ दुरुस्त करें। आप कर सकते हैं, हाथ उठा के रखें, पीछे ना दिखाएं खुदा को, खुदावंद मैं दिल से चाहता हूँ। मुश्किल काम नहीं है भाई, हो सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह में ऑल थिंग्स आर ओनली, बहन आप आ जाए, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। हाथ उठा के रखिए, ओनली उठा कर रखिए हाथ। आपको पता है साइंस कहती है कि कशिश शक्ल हमारे हाथ को नीचे करती है। आपका हाथ जरा नीचे करें, सुकून में आ गए। ये साइंस का लॉ है। साइंस के मुताबिक आप ऊपर नहीं जा सकते, मगर यीशु मसीह कहता है मैं जल्द तुम्हें बादलों पर लेने आ रहा हूं। जरा हाथ करके ऊपर बताएं ना, हाथ ऊपर जा रहे हैं, किस किस का जा रहा है? जरा दिखाएं जिस जिसका ज्यादा जा रहा है हाथ। भैया ये हाथ दिखाएं जरा, जिनके हाथ ऊपर जा रहे हैं, जरा लगा के दिखाएं दोनों हाथ ऊपर जा रहे हैं हाथ। तो क्या ख्याल है, अगर ये हाथ ऊपर होते तो बॉडी ऊपर चले जाएगी? हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह के साथ ऑल थिंग्स आर, साइंस को बताएं कि भाई जहाँ तेरी खत्म होती है वहीं तो मेरे यीशु की शुरू होती है। साइंसदान कहते हैं आप हाथ ऊपर नहीं कर सकते, कशिश शक्ल आपके हाथ को नीचे करेगी। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं जब आप खुदावंद यीशु मसीह के लिए हाथ उठाते हैं तो आप पूरी साइंस को पीछे छोड़ देते हैं, और एक दिन हमने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ के ऊपर जाना है। हालेलुया। इसीलिए आज वक्त है कि हम अपने खुदावंद के साथ इस फादर्स डे के ऊपर, जो हमारा असल फादर है, जो हमारा हकीकी बाप है, अपनी रिलेशनशिप को दुरुस्त करें। आए सब अपनी आंखों को बंद कर, सब बच्चे सब आंखों को बंद कर ले थोड़ी देर के लिए, किसी की आंख खुली चंद लम्हों के लिए सब आंखें बंद कर। खुदावंद से कहें खुदावंद मुझे तौफीक अता करके मैं अपनी रिलेशन तेरे साथ दुरुस्त कर सकूं। खुदावंद मुझे तौफीक दे मैं अपने बीवी बच्चों के साथ अपने आप को दुरुस्त कर सकूं। बच्चे कहें खुदावंद मुझे तौफीक अता करके मैं अपने माँ बाप के साथ खुद को दुरुस्त कर सकूं। और यकीन जाने ये कोई मुश्किल काम नहीं, क्योंकि जहां खुदावंद यीशु मसीह है वहां सब कुछ पॉसिबल है।
खुदावन जितने बहन भाइयों ने अपने हाथों को बुलंद किया है, खुदावन काश इनका रिश्ता तेरे साथ दुरुस्त हो जाए खुदावन, क्योंकि जब बाप का हाथ बेटी के सर पर रहता है, बाप का हाथ बेटे के कंधे पर रहता है, तो खुदावन जोर बरकरार रहता है, शफकत और बरकत जारी रहती है। खुदावन यीशु के नाम में तेरा हाथ इन पर पड़ा रहे खुदा, काश इनका और तेरा रिश्ता खुदावन बरकरार रहे, बहाल रहे खुदावन। जिन बहन भाइयों ने दिल से हाथों को उठाया, काश इनकी फैमिलीज में खुदावन तेरी मोहब्बत काम करे। माँ बाप खुदा परस्त हो, औलाद खुदा परस्त हो, एक दूसरे के लिए दुआ करने वाले, एक दूसरे के लिए बरकत मांगने वाले, एक दूसरे के लिए नजात के कायल हो खुदा। खुदावंद इस कलीसिया को बरकत दे, ये तेरे चुनी हुई दुल्हन है और तू यहाँ पर हमें बरकत देने के लिए उतरा हुआ है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद यीशु के नाम में। काश इस फादर्स डे पर हम अपने आसमानी बाप के साथ अपने रिश्ते को दुरुस्त करें, जस्मानी वालिदैन के साथ औलाद अपने रिश्तों को दुरुस्त करे, वालिदैन औलाद के साथ अपने रिश्तों को दुरुस्त करे। हम कलीसिया होते हुए, बहन भाई होते हुए एक दूसरे के साथ अपनी मोहब्बत को ज्यादा बढ़ाएं। खुदा मुझे बख्श दे। मैं ईमान रखता हूं तेरे हुजूर कुछ नामुमकिन नहीं, सब कुछ मुमकिन है। और खुदावंद इस ईमान के साथ खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, तूने मेरे नबी से वादा किया था कि तेरी दुआ के आगे कैंसर भी नहीं टिकेगा। खुदावंद उस नबी का अजर मेरे पास है। खुदावंद मैं बड़े ईमान के साथ ये बात कहता हूं, जितने बहन भाई इस दुआ को, इस कलामे मुकद्दस को दिल से कबूल करते हैं, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में इनके आगे कोई रुकावट नहीं टिकेगी। इनके खानदान बहाल होंगे, ये यीशु मसीह की खिदमत करेंगे, ये तेरे साथ चलेंगे। कोई इन्हें तेरे कलाम से, इस मैसेज से दूर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सब कुछ तेरे जलाल के लिए। खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। खुदावंद मैं ईमान रखता हूं तूने मेरी दुआ के मुताबिक कर दिया है, क्योंकि तूने मुझे शर्मिंदा नहीं होने